Hello everyone, in this video I'm going to explain a beautiful poem, My Mother at 66, composed by a very famous Indian poetess named Kamla Das. Kamla Das was born in Malabar, Kerala and is very famous for writing about the complexities of human relationship. In this poem, she has described about her fear of separation from her mother. It is the beautiful poem which expresses the poetess feeling about her aging mother, about her mother who is getting older. She is having fear in her heart that she might lose her mother very soon because she is aging, and aging is a natural process. Nobody can stop it. And also, in this poem, she has described this fear two times, once in her childhood and other when she grows up. The fear of separation is same in the both stages of life, but the cause is very different. In her childhood, when she lost her father, she was having the fear of losing her mother too. बचपन में जब पोएटिस ने अपने फादर को खोया तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह डर बैठ गया कि वह अपनी माँ से भी दूर ना हो जाए। तो इस वजह से वो फियर चाइल्डहुड में भी उसने फेस किया। एंड नाउ व्हेन शी इज ग्रोन अप, शी इज हैविंग द fear, the same fear of losing her mother, but now the cause is different. Now the cause is natural and that is aging. Aging को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह प्रकृति का नियम है. So the fear of separation is experienced by the poetess in two stages of her life. And in this poem, in the beginning, poetess has described about the scene in which she is coming back to Cochin from her parents' house as she is married now, and her mother is also residing in the car with her to see her off at the airport. And the scene begins in the car itself. The poetess is sitting beside her mother in the car, and she suddenly starts thinking about her mother by looking at her face. What she thinks at that time? She thinks that her mother is getting older. She is describing her mother by looking at her face, and she has described her feelings about her mother by the words like doze, ashen like, and corpse. These are the words which means doze is for sleeping, ashen like means pale, and corpse is like a dead body. Okay, let us go to the line by line explanation of the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doze open-mouthed, her face ashen like a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. Means, in these lines, poetess is describing the scene when she is in the car with her mother and her mother is sleeping. गाड़ी में उसकी माँ सो रही है और यहाँ पर पोएटिस ने अपनी मदर का पहला डिस्क्रिप्शन दिया है. डोज. डोज मीन्स होता है स्लीपिंग. अदर वर्ड इज ashen like. ashen like means pale. And the last word is corpse. Corpse मतलब होता है dead body. So here the poetess is describing her mother's face. She is saying that her mother is sleeping and she is looking like a dead body. Because she is motionless, she is very passive at that time, and suddenly she gets very distressed about the condition of her mother. क्यों? क्योंकि पोएटिस को अब यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि उसकी मदर बूढ़ी हो रही है. शी मे लूज हर मदर. सो इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट शी डाइवर्टेड हर माइंड. वो अपना माइंड डाइवर्ट करती है उसी पर, एंड शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगती है. बट सून put that thought away and looked out at young
टी स्प्रिंटिंग and merry children spilling out of their homes. इस समय पोएटस ने अपना ध्यान अपनी मदर से हटा के बाहर देना शुरू कर दिया, जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं. merry children spilling means children are playing. एंड ट्री स्प्रिंटिंग का मीनिंग होता है जब हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं या बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हमें बाहर के पेड़, झाड़ियाँ, हर चीज़ पीछे की ओर जाते हुए दिखते हैं. एंड दिस फीलिंग इज़ अबाउट द लूजिंग ऑफ टाइम, कि हमने टाइम को खो दिया है, टाइम हमें छोड़कर जा रहा है. सो पोएटस स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स. शी वॉन्ट्स टू divert her mind from her mother, and for that she looked outside, जहाँ पर उसको बच्चे दिखे जो कि खेल रहे थे. बट ट्री स्प्रिंटिंग ने उसको ये फील कराया, पेड़ों के पौधों के पीछे जाने की उस प्रक्रिया ने उसे यह फील कराया कि टाइम अब हाथों से जा चुका है. तो यहाँ पर पोएटस ने अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि अब वो टाइम जा चुका है जिसमें कि वह अपनी मदर के साथ और टाइम स्पेंड कर पाए, या यूँ कह सकते हैं कि उसे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ दैट शी माइट लूज हर सून. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood fear. In these lines, poetess is again describing her mother. यहाँ पर मदर का सेकेंड डिस्क्रिप्शन पोएटस ने दिया है, जिसमें वर्ड यूज़ किए हैं लाइक वैन, WAN, वैन मतलब होता है कलरलेस, पेल, एंड लाइक अ विंटर्स मून का मतलब होता है कि विंटर का मून किस तरह होता है, जो कि फॉग के पीछे हमें धुंधला दिखाई देता है, जिसका वो स्पार्क नहीं रहता. इट हैज़ लॉस्ट हर रेडियंस एज द मदर डज. मदर का जो यूथ है, हर यूथफुलनेस, हर रेडियंस हैज़ बिन लॉस्ट. और ये सब देखकर पोएटस को अचानक से क्या याद आता है? द फैमिलियर एक, जो उसका जाना पहचाना दुख था, जो पहले का दर्द था. व्हाट वाज दैट? हर चाइल्डहुड फियर. चाइल्डहुड फियर वाज लूजिंग हर मदर बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ फादर, जो कि बच्चे के मन में डर था. मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन्स. बट ऑल आई सेड वॉज से यू सून अम्मा. All I did was smile and smile and smile. Means poetess ने अब ये सोचा कि अब वो कुछ नहीं कर सकती है. उसके मन में डर आया. She said, "Okay, see you soon, Amma," and smile, smile, smile. यहाँ पर parting words. Parting means होता है बिछड़ना. जब हम किसी से बिछड़ते हैं तो जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट आर द पार्टिंग वर्ड्स. पार्टिंग वर्ड्स यहाँ पर स्माइल के अलावा कुछ नहीं है. सी यू सून अम्मा बोलकर स्माइल की एक पोएटस ने. एंड यहाँ पर 3 स्माइल्स हैं जो कि रिपीटेडली यहाँ पर लिखी गई हैं. ये अलग अलग एक्सप्रेशंस को शो कर रही हैं. पार्टिंग वर्ड स्माइल, स्माइल, स्माइल कहीं सेल्फ रियलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कभी ब्रेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और कहीं पर होप टू सी हर मदर नेक्स्ट टाइम को रिप्रेजेंट कर रही हैं. व्हाट आर दीज? सेल्फ रियलाइजेशन इज दैट कि हर मदर इज गेटिंग ओल्डर, और उसने यह भी रियलाइज कर लिया कि अब टाइम बीत चुका है. काश उसने अपनी माँ का और साथ दिया होता, या उसको उसकी माँ का और साथ मिला होता. एंड सेकेंड इज ब्रेव फ्रंट. एंड द वर्ड ब्रेव फ्रंट मीन्स होता है हम सामने से किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाएं. कीपिंग अ ब्रेव फ्रंट मीन्स होता है हम सामने से दिखाएं कि आई एम क्वाइट ब्रेव, मुझे कोई फियर या कोई डर नहीं है किसी चीज़ का. सो पोएटस इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर राइट नाउ. तो वो अपने चेहरे पर वो डर नहीं दिखाना चाहती है. एंड द लास्ट स्माइल इज फॉर अ होप
टू सी हर मदर नेक्स्ट टाइम, कि नेक्स्ट टाइम अगर वो फिर से अपने पेरेंट्स के घर कोचीन आती है तो वो अपनी माँ से मिल पाए। पर उसके मन में ये डर अभी भी है दैट her mother is of 66 now and she is getting older and she might lose her very soon. So this was all about the poem. It is very easy poem which is explaining the human relation complexities and यहाँ पे माँ को खोने का डर पोएटिस ने बहुत इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। फिगर ऑफ स्पीचेस सिमिली जैसी हैं, लाइक एन एशियन क्रॉप, लाइक अ विंटर्स मून। बहुत सिंपल सी लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ करके पोएटिस ने इसे बहुत अच्छी सी लिरिकल पोएम बनाया है। Okay, so that was all about the explanation of this poem. I hope you will be in touch with the channel. Please subscribe it to get the more videos on English poetry. Thank you.